स्टेटस ऑफ वुमेन इन एंशियंट टू मॉडर्न पीरियड, मतलब शुरू से आज तक में क्या बदलाव हुए हैं महिलाओं के प्रति, ठीक है। तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जा सकता है स्टेटस ऑफ वुमेन इन मॉडर्न एरा, ठीक है। अभी महिलाओं के साथ कैसा वो चल रहा है सिस्टम। तो सबसे पहले देखिए, इन एंशियंट टाइम्स the attitude towards women was similar to that of women, because men did not know that men are involved in disaster creation. Everyone felt that there is a potential for innovation between earth and women, and that there must be some divine basis for it. Apart from this, women also invented agriculture. Due to this very important achievement of women, the nomadic society became stable to some extent. So the problem of water was solved. The society became stable, and only after that the matriarchal system came into existence in the society. इन मैट्रियार्कल सोसाइटी मेन एंड वुमेन वर इक्वल, ठीक है। पहले क्या था, मैट्रियार्कल जो सिस्टम था उससे पहले पेट्रियार्कल सिस्टम था, ठीक है। उसमें उसमें क्या होता था, मर्द औरत समान नहीं होती थी, मर्द ऊपर होता था, महिलाएं नीचे होती थी, ठीक है। ऐसा स्टेटस था, घर का जो हेड होगा वो मर्द ही होगा, ऐसा भी सीन था। लेकिन मैट्रियार्कल सोसाइटी जब आया तब मर्द और वुमेन जो है सेम होने लगा। वुमेन वर एट फोर फ्रंट ऑफ मार्शल आर्ट, आयुर्वेदा, एस्थेटिकल फिलोसफी, ठीक है। इसके बाद है दे हैड अ सिस्टम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन द प्रिमिटिव गणा सोसाइटी। वुमन नॉट ओनली डिड द वर्क ऑफ बिल्डिंग द फ्रेमवर्क ऑफ योजना, लेइंग ब्रिक्स etc., but also had the right to distribute the role in Ghana. When women have made important for human life is the invention of geometry. Fortunately, the status of women remained in high the matriarchal society. ठीक है. Later, agriculture, technology, traditional farming ideas were overtaken by the use of plows and livestock for agriculture. At the same time, the place of man in childbirth became clear. As a result of the idea of feminine Mahatma came to an end, and motherhood was replaced by the patriarchal culture in this society. वैदिक पीरियड में क्या कुछ हुआ उसके बारे में दो चार लाइन ही पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, जो हेड है, ठीक है, मेन पॉइंट। The Arya arrived in India between 3000 BC and 2500 BC. The Aryans defeated the matriarchal non-Aryan culture that existed in Indian society and established discrimination in the Indian system by establishing caste. ठीक है, हमारे भारत में पहले जमाने में कास्ट सिस्टम का कुछ ऐसा नहीं था। जब आर्यंस हमारे भारत में आए, ठीक है, तो उन्होंने जो है कास्ट सिस्टम का ये बनाया, ठीक है। इन द वैदिक पीरियड वुमेन हैड द राइट टू एजुकेशन, देयरफॉर ब्राह्मणवाद इन रिमेन्ड अनमैरिड throughout their lives and practiced enlightenment. However, there were no oppressive practice such as child marriage, sati pratha till the time of marriage, ठीक है। But women did not have the right to property. उस टाइम पे महिलाओं को राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं हुआ करता था, ठीक है। इसके बाद आगे है आपका पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या हुआ, द period from 1500 BC to 500 AD is known as the North Vedic period. During this period, Ramayana and Mahabharata were created as epics. ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड में ही रामायण और महाभारत का जो है क्रिएशन हुआ था। दिस पीरियड वाज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन टुवर्ड्स द स्टेटस ऑफ वुमेन. It is the post-Vedic period. The status of women began the decline. ठीक है, मनु वचन clarifies the society of women in this society, in which they should not live in the country where they are leading. The defeat of the Aryans and Anaryas during this period helped them to stabilize their lives. ठीक है, इसके बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड स्क्रिप्चर वर कंपोज्ड टू ऐड रिलीजन टू द इंफीरियर एंड सेकेंडरी स्टेटस ऑफ वुमेन. मनु स्मृति was also composed during this period. Due to the addition of religion to the secondary status of women,
the status of women was degraded. Overall, the system of women was degraded due to influence of Manusmriti and other similar scriptures. The age of marriage of women decreased. Child marriage system came into existence. ठीक है. इसके बाद आया आपका medieval period. Generally period from 1200 BC, 1200 to 1880 AD is considered as medieval period. During this period, Indian life was Indian life was a life dominated by inequality, injustice, ignorance, and based on scriptures. ठीक है. Epics based on scriptures were the basis of society. Ramayana and Mahabharata are all full of such idols. For example, in Mahabharata, if the son of Brahmin is a Brahman, then if his mother is a Kshatriya and a Vaishya, it does not matter. ठीक है. हाँ, due to transformation of caste system into caste system in the medieval period, this period of women's life is considered to be a डार्क पीरियड. ठीक है. मेडिवल पीरियड जो था उसको डार्क पीरियड कहा जाता है महिलाओं के लिए. उस समय पर जो ये रामायण महाभारत सब था उनको लोग फॉलो करते थे. ठीक है. एग्जाम्पल फॉर महाभारत में कोई भी ब्राह्मण है, ठीक है, तो उसका बेटा ब्राह्मण ही होगा, चाहे उसकी माँ जो है, चाहे उसने शादी क्षत्रिय से किया हो या वैश्य से किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर बाप ब्राह्मण है तो वो, लेकिन अभी ऐसा नहीं है. लड़के उसके बेटे को जिसका सरनेम चाहिए उसका सरनेम लगा सकता है. ठीक है. इसके बाद हुआ इसके बाद किधर गया. हाँ, डार्क पीरियड. द बिगेस्ट विक्टिम ऑफ दिस कास्ट सिस्टम वर वुमेन. ठीक है. कास्ट सिस्टम में सबसे प्रताड़ित जो हुए, विक्टिम जो हुए, वो वुमेन ही थी. Because women have a great responsibility to maintain the purity of the caste. For this, many restrictions were imposed on women. For this, women's right to education was taken away and women were enslaved in intellectual slavery. By associating the chastity of women with religion, God religion, Vrat Vaikalya was engaged. The practice of child marriage came into existence so that a girl should not have intercaste marriage. ठीक है. विडो रीमैरेज वॉज बैंड सो दैट विडोज शुड नॉट हैव इंटर रेशियल मैरिजेस. ठीक है. मतलब कास्ट बचाने के लिए लोग चाइल्ड मैरिज कर देते थे. मतलब मेरी बेटी को बड़ा होगी तो उसको किसी से प्यार हो जाएगा, वो किसी और से शादी कर लेगी, तो इससे अच्छा है कि अभी कम उम्र में मैं अपने पसंद से कर दूं. ठीक है, ताकि मेरे ही कास्ट में कर सकूं. ऐसे ही विडो जो होती थी उसको रीमैरिज करने के लिए बैन कर दिया गया कि क्या पता विडो जो है वो किसी से भी शादी कर ले, किसी भी कास्ट से कर ले. ठीक है. तो ऐसा, तो इसीलिए वो मैरिज जो है विडो रीमैरिज को बैन कर दिया गया था. चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट कर रहा था. ठीक है. At the same time, the practice of sati pratha came into existence. Women were glorified and imprisoned by things like ideal mothers, ideal wives. सती प्रथा क्या है, आपसे 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. तो सती प्रथा का मतलब भी पहले ये होता था कि आपका पति अगर मर चुका है तो अब आपको भी जिंदा रह के कोई मतलब नहीं है, तो आप भी उसी चिता में जल जाते थे जिस चिता में आपके पति जलते थे. उसको बोला जाता था सती प्रथा. कितना गंदा प्रथा था. ठीक है. तो वो उस टाइम पे मिडिवल पीरियड में बहुत चला. ठीक है. इसके बाद जो है इसी बीच इस्लामिक रूलर जो है हमारे इंडिया में आया. आपको पता है जब ब्रिटिशर्स ये क्या बोलते हैं, मेडिवल पीरियड में जो मुगल साम्राज्य सब आए, दूसरे राज्य से जो भारत में अपना अपना वो साम्राज्य स्थापित करने के लिए. ठीक है. इस्लामिक रूल ओवर इंडिया बिगन द मिडिवल पीरियड. मिडिवल पीरियड से ही इस्लामिक रूल जो है रूलर आने लगे थे. Therefore, the interaction between Hindus and Muslims influenced the tradition due to the different cultures between Islam and Hinduism. Efforts were made to protect Hinduism and women from Islam. ठीक है. This resulted in the already degraded status of women, and a status of women who was already inferior became even more secondary. ठीक है. As a result, Hindu women were confined within 4 walls. The condition of Muslim women was also very dire.
She was not given any rights. She had to live her life under a burqa. As a result, their quality of life was extremely poor. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उस मेडिवल पीरियड में सिर्फ हिंदू महिलाओं के साथ ही ऐसा था, मुस्लिम महिलाओं के साथ भी बहुत सारे प्रताड़ना हुए। ठीक है, इसके बाद आता है मॉडर्न पीरियड। ठीक है, मॉडर्न पीरियड में क्या होता है, इन इंडियाज हिस्ट्री टू दिस डे टू डोमिनेटेड बाय पैट्रियार्कल सिस्टम, टूडेज 21st century is no exception. That is why the social, economic, political, cultural and educational status of women has been degraded even in modern times. अभी भी उनका जो है उत्थान नहीं हुआ है। ठीक है, मॉडर्न पीरियड में भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं ऐसा अभी भी चल ही रहा है। ठीक है, इसके बाद है अगला, अकॉर्डिंग टू मिस्टर वी डे पाटिल, ये कोई जूरिस्ट होंगे। ठीक है, द मिशनरीज वर्क हेल्प टू क्रिएट अ जनरेशन टू सोशल रिफॉर्मर in India and Maharashtra. Apart from a few things in the history of India from the matriarchal period, during the British period, mainly Raja Ram Mohan Rai, Mahatma Phule did a lot on the question of women in the 19th century. ठीक है, मॉडर्न पीरियड में ब्रिटिशर्स सब थे। ठीक है, तो उनके शासन काल में राजा राम मोहन राय, महात्मा फूले, उन्होंने महिलाओं के लिए 19th सेंचुरी में बहुत सारे सवाल उठाए। ठीक है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। even if their work is not enough, change seems to have begun. ठीक है, उनके काम से ज्यादा कुछ इफेक्ट तो नहीं गिरा, लेकिन कुछ चेंजेस हुए। ठीक है, शुरुआत हो चुकी थी। The modern epoch of women's development can be divided into two periods, on pre-independence and the other post-independence. ठीक है, अभी हम मॉडर्न पीरियड को दो तरीके से समझ सकते हैं। एक समझ सकते हैं इंडिपेंडेंस के पहले का सिचुएशन, और एक इंडिपेंडेंस के बाद का सिचुएशन। ठीक है, इन इंडियन सोसाइटी women were worshipped as mother and gods. ठीक है, while on the other hand women were treated as secondary. In the 19th century, women had a secondary place in the society at home. ठीक है, मतलब प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या था, महिलाओं को मतलब जननी कहा जाता था। ठीक है, गॉड के बराबर माना जाता था, लेकिन उस समय पे भी महिलाओं को दोयम दर्जा ही मिलता था। ठीक है, कि घर का अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो महिला नहीं ले सकती, लेना पुरुष को ही है। ठीक है, मतलब सिस्टम पैट्रियार्कल तब भी था। 19th सेंचुरी में भी महिलाओं को घर से बाहर निकलने का कोई अधिकार नहीं था। सोसाइटी ये समझती थी कि महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए। ये प्री इंडिपेंडेंस की बात है। ठीक है, इसके बाद है किधर गया, हाँ, नो स्कोप वाज गिवन टू हर एक्टिविज्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अ न्यू सिस्टम ऑफ colonialism, हाँ, colonialism and capitalism came to the Indians. ठीक है, came to the Indians. During this period, the British tried to prove their moral supremacy by assuming that there was an oppressed group called Indian women. ठीक है, Indian social reformer Raja Ram Mohan Rai first enacted the Prohibition of Sati Act. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सती प्रोहिबिशन एक्ट को किसने लाया था, तो राजा राम मोहन राय ने ही लाया था। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, enacted Prohibition Act recognizing that the main reason for the backwardness of the Indian was the confinement of women. ठीक है, हिंदुस्तानी जो थे उस समय पर, उनके पिछड़े होने का एक रीजन था कि वो महिलाओं को कन्फाइन करके रखते थे। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन पुणे इन 1848। ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला था 1848 में। ठीक है, द हाईली रेवोल्यूशनरी डिसीजन बिगन टू चेंज द लिव्स ऑफ इंडियन वुमेन। विडो रीमैरिज वाज लेटर इनेक्टेड इन 1856। ठीक है, बट was not adopted by the then society. Later, Mahatma Phule set up a child murder prevention home. Mahatma Phule and Savitri Bai Phule were of the view that widows, abandoned, destitute women in the society victimized by the male injustice
male injustice should not end their lives, and they should give birth to their children in a child prevention home and take the child home if they want, और विद चाइल्ड मर्डर प्रिवेंशन। ठीक है, इसके बाद जो है वुमेन वर एजुकेटेड इन दी women were educated in the British education system. Pandit Ramabai, Tarabai Shinde shared their thought on the truth-seeking rebellious legacy. A small number of women participated in the freedom struggle. Also, the participation of women in the political, social इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल स्फेयर्स बिगन टू इंक्रीज। ठीक है, तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से ही महिलाओं का जो है योगदान पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल स्फेयर में बढ़ने लगा था। ठीक है, बट इन द मेल डोमिनेटेड सिस्टम द स्टेटस ऑफ वुमेन हैज नॉट चेंज मच। ठीक है, मेल डोमिनेटेड सिस्टम होने के कारण महिलाओं का जो स्टेटस था वो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं ला पाया था। अब इसके बाद है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। Democracy was adopted after independence. India adopted an independence constitution. The constitution gave women equal right, equal status with the men. ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन्फोर्स हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके बाद महिलाओं को मर्दों के बराबर अधिकार मिलने लगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर was elected as the law minister in the Indian Legislative Council. He introduced the Hindu Code Bill in Parliament to achieve equality for women, but it was not accepted by the male-dominated leaders of the time. ये जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन्होंने उस समय पर महिलाओं के बराबरी के लिए, उनके इक्वालिटी के लिए एक लॉ लाया था, हिंदू कोड बिल। उस समय पर जो नेता थे, जो हिंदूवादी नेता थे, जिनको लगता था कि भाई इससे मर्दों का जो है अधिकार कम हो जाएगा, मेल डोमिनेटेड जो लोग थे, उन्होंने उस बिल का विरोध किया। ठीक है, फॉर दिस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैड द करेज टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। इसी बात को लेकर बाबा साहब ने अपना इस्तीफा भी दिया था। आफ्टर दैट मेनी वुमेन्स लिबरेशन organization were formed to give a scope to women's intellect, deeds and workforce. These organizations strive for the holistic development of women by creating awareness, self-esteem and self-respect. Today, women have proved their mettle in the fields of education, literature, art, politics and sociology. आज आप देखो कितना हम लोग कहाँ से कहाँ बढ़े हैं। आज हमारे देश का राष्ट्रपति भी महिला है, बहुत सारे स्टेट की जो मुख्यमंत्री है वो खुद महिला है। ठीक है, बड़े बड़े पोस्ट पर आज देखो यूपीएससी का रिजल्ट आया, नंबर 1 रैंकर शक्ति दुबे है, वो भी महिला है। बराबर, तो अभी तो महिलाओं का बहुत मतलब उत्थान हो रहा है, हर फील्ड में महिलाएं। अभी आर्मी चीफ भी महिला, ये आर्मी में भी अच्छे अच्छे पोस्ट पर महिला काम कर रही हैं। अब ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पे महिलाएं ऊपर नहीं आई। ठीक है, The 20th and 21st century are very important for Indian society. आप लोगों को ना थोड़ा इंसियंट का दिखाना है कि उस समय पे कैसे महिलाओं को जो है माना तो जाता था कि माँ के बराबर, जननी के बराबर, लेकिन सेकेंडरी स्टेटस था। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना होता था तो वो मर्द ही लेता था। अगर महिला को कुछ करना होता था तो मर्द से पूछा जाता था। महिलाओं को बाहर निकलने का भी अधिकार नहीं था उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं, मेडिवल पीरियड में जो है मुगल साम्राज्य आए, वो भी उन्होंने भी इस्लाम को यहाँ पे फैलाया, लेकिन मुसलमान की जो इस्लाम में जो महिलाएं थी उनका भी हालत वैसे ही था, बुर्का पहन के उसको निकलना था। उनके उसके बाद एजुकेशन के लिए भी उनको अधिकार नहीं था। तो ये सब आपको एंशियंट में थोड़ा दिखाना है, और फिर आपको ये सब मेडिवल, पोस्ट, प्री इतना नहीं लिखना है। ठीक है, आप पहले एंशियंट में थोड़ा सा बता दो और सीधा प्रेजेंट में पहुंच जाओ। ठीक है, कि अब महिलाओं का स्टेटस क्या है। अभी आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हो, हमारे देश के राष्ट्रपति ये हैं द्रौपदी मुर्मू। एंशियंट टाइम में अगर कोई ऐसा सोचता अभी कि देश का सबसे बड़ा पोस्ट पे महिला बैठेगी तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। बराबर, लेकिन आज देखो हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं। तो आपको कंपैरिजन करना है कि पीछे कितना कैसा स्टेटस रहा है, और अभी भी जो आप दिखाओगे तो 100% आप अच्छा ही नहीं दिखाना है। 1-2% आपको उसमें भी दिखाना है कि इस फील्ड में अभी भी चेंजेस होने चाहिए। महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी अभी भी थोड़ा सा कहीं कहीं लगता है कि महिलाओं का अधिकार जो है
सिमिलर नहीं है मर्दों के। अभी भी कहीं कहीं पे देखा जाता है कि मर्दों की सैलरी ज्यादा है, महिलाओं को कम मिलता है, बराबर। तो आपको अभी का पूरा पॉजिटिव ही नहीं दिखाना है, जहां जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे जरूरत है अभी भी बदलाव करने की, तो आप अपने सजेशन उसमें डाल सकते हो। ओवरऑल आपको अगर ऐसा पूछा जाए, ऐसा सवाल में आए 13 मार्क्स के लिए, तो आपको पेज भर के आना है, ठीक है। अभी है हमारा नेक्स्ट ऑफेंसेज रिलेटिंग टू वुमेन। आपका जो ये है सब्जेक्ट है लॉ रिलेटेड टू वुमेन, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमने स्टेटस बताया आपको कि महिलाओं का जो स्टेटस पहले क्या था और अभी क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑफेंसेज रिलेटिंग टू वुमेन, महिलाओं के साथ अपराध कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला है रेप, ठीक है। देखो मैंने जो भी ऑफेंसेज दिए हैं ना, सबके पनिशमेंट भी दिया है। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है डिफाइन रेप एंड एक्सप्लेन, मतलब राइट पनिशमेंट अबाउट इट, ठीक है, मतलब इसके पनिशमेंट के बारे में बताइए कि क्या है। तो इसीलिए मैंने जो भी लिए हैं ऑफेंस, उसके पनिशमेंट भी साथ ही साथ लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है रेप। रेप क्या है? रेप एक सेक्सुअल इंटरकोर्स है विदाउट कंसेंट और विद कंसेंट ऑब्टेन थ्रू फियर और कोअर्जन, ठीक है। रेप जो है, आप किसी महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो उसके बिना सहमति के, तो वो रेप कहलाता है, ठीक है। अगर उस महिला ने आपको कंसेंट दिया भी है और पता चलता है कि वो कंसेंट महिला ने डर के दिया था या बाय कोअर्जन दिया था या आपने उसको थ्रेट पहुंचाया था, ठीक है, तो वो फिर कंसेंट कंसेंट नहीं रहता, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद पनिशमेंट क्या है रेप के लिए? तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 10 years विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और विद फाइन, ठीक है। तो ये रेप का हो गया, 10 कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका गैंगरेप। गैंगरेप का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी महिला के साथ कॉमन ऑब्जेक्ट से, ठीक है, मतलब दोनों का जो भी रहेंगे उसका सबका एक ही वो मोटो रहेगा कि भाई इसका रेप करना है, तो ऐसा। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलके किसी महिला के साथ सेम इंटेंशन के साथ अगर रेप करता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने गैंग रेप किया है, ठीक है। लेकिन उसमें दो से अधिक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसका पनिशमेंट कितना है? रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 20 years बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो रेप जो होता है उसमें 10 साल की सजा कम से कम और मैक्सिमम 20 साल। गैंग रेप में मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तीसरा ऑफेंस है सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब है कि आप महिला के साथ कोई भी ऐसा एक्ट करते हो जो महिला को पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो होता है सेक्सुअल हरासमेंट। चाहे उसमें कुछ मापदंड दिए हैं, जैसे आप किसी महिला को पोर्नोग्राफी दिखाते हो या उसको बोलते हो कि चलो ना आके चल के आते हैं, या आप सेक्सुअल फेवर मांगते हो, ठीक है, या कोई कलर्ड रिमार्क्स करते हो, सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क, ठीक है। किसी भी तरीके का उस महिला के लिए अनवेलकम है वो, अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो वो सेक्सुअल हरासमेंट होता है। इसके लिए आपको पनिशमेंट जो है कम से कम जो है कम से कम नहीं है, मैक्सिमम 3 years है, ठीक है, और विद फाइन। तो 3 साल तक का जो है जेल हो सकता है आपको और फाइन अलग से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वॉयरिज्म। वॉयरिज्म का मतलब है कि किसी भी महिला को ऐसी परिस्थिति में देखना जिस परिस्थिति में वो नहीं चाहती है कि मुझे कोई देखे, चाहे आप देख रहे हो, फोटो निकाल रहे हो या वीडियोग्राफी कर रहे हो, ठीक है। तो किसी महिला के किसी ऐसे प्राइवेट एक्ट के टाइम पर जिसमें महिला चाहती है कि मुझे कोई न देखे, उस परिस्थिति में अगर आप देखते हो तो वो उसे बोला जाता है वॉयरिज्म, ठीक है। और वॉयरिज्म के लिए जैसे मान के चलो कोई महिला नहा रही है, तो नहाएंगी तो स्वाभाविक है कि नेकेड होके नहाएंगी, तो चाहेंगी क्या कि मुझे कोई देखे। अगर आप ऐसी परिस्थिति में उसको देखते हो तो ये ऑफेंस ही वॉयरिज्म का है, ठीक है। इसके लिए पनिशमेंट है फर्स्ट कन्विक्ट, अगर पहली बार आप ऐसा कोई अपराध करते हो तो कम से कम 1 साल मैक्सिमम 3 साल, ठीक है। अगर दोबारा इस ऐसी अपराध करने के लिए आप कन्विक्ट होते हो तो उसमें आपका पनिशमेंट जो है 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी महिला का पीछा करना या उसके फोटो कलेक्ट करना, या सोशल मीडिया पर वो नहीं चाहती है कि आप उसको फॉलो करो फिर भी आप फॉलो करते हो, ठीक है। तो ये सब जो है स्टॉकिंग के अंदर आता है। और स्टॉकिंग का जो है पनिशमेंट है फर्स्ट कन्विक्शन है, अगर पहली बार हुआ है तो 3 साल तक का जेल, दूसरी बार हुआ है तो 5 साल तक का जेल
हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डाउरी डेथ। डाउरी डेथ का मतलब है कि कोई भी महिला का अगर 7 साल के भीतर शादी के 7 साल के भीतर अगर मौत होती है और मौत का वजह पाया जाता है कि उसके बॉडी पर कहीं पे निशान पाया गया है या बर्न पाया गया है या इंजरी पाया गया है, ठीक है, और ये पता चलता है कि इस महिला के साथ डाउरी का डिमांड किया गया था, ठीक है, तो ये माना जाएगा कि वो महिला का जो है डाउरी डेथ हुआ था। डाउरी डेथ के लिए पनिशमेंट कम से कम 7 साल, ज्यादा से ज्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रुअल्टी। क्रुअल्टी का मतलब है कि भाई अपनी वाइफ को सताना किसी भी तरीके से, या आपके सास ससुर आपको ताना देते हैं कि तेरे बाप ने दहेज नहीं दिया, तेरे को खाना बनाना नहीं सिखाया, तुझे खाना नहीं बनाने आता है, बराबर, या आप किसी भी छोटी मोटी बात के लिए थप्पड़ मार देते हो, ठीक है, तो ऐसी चीजें जो है वो क्रुअल्टी के अंदर कवर होती है और इसके लिए कम से कम 6 महीने का जेल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक का जेल आपको हो सकता है विद फाइन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आउटरेज ऑफ मोडेस्टी। मतलब महिलाओं का जो है शील हनन बोलते हैं उसको, कि कोई महिला जा रही है, आपने उसका दुपट्टा खींच लिया या किसी भी तरीके का क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल किया, ठीक है, और ये आपने इंटेंशनली किया है, ठीक है, तो इसको माना जाएगा कि आपने किसी महिला का शील भंग किया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पनिशमेंट जो है कम से कम नहीं है, मैक्सिमम 5 ईयर है, ठीक है, और फाइन अलग से। तो यहां तक सभी को क्लियर है? स्टेटस ऑफ वीमेन बताया मैंने और ऑफेंस रिलेटिंग टू वीमेन बताया मैंने, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? चलो एक थम्स अप मिला, मतलब एक आदमी को समझ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला है हमारा, देखिए, स्टेट्यूट मतलब लॉज रिलेटिंग टू वुमेन। अब महिलाओं से जुड़ा, महिलाओं के साथ इतने सारे अपराध हो रहे हैं, बराबर, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है ना कि महिलाओं के लिए अलग से लॉ भी बनाया जाए। तो हमारे इंडिया में लेजिस्लेशन जो है महिलाओं के लिए बहुत सारे हैं, मतलब स्टेट्यूट्स या लॉज, ठीक है। तो सबसे पहला है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, इसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ये महिलाओं के लिए बनाया गया था, इसी को शॉर्ट में डीबी एक्ट बोलते हैं। इसमें महिलाओं के साथ बहुत सारी तरीके का जो है उत्पीड़न होता था, मानसिक और फिजिकल, ठीक है। जे इसमें हर महिला जो है आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सास ससुर ही बहू को करे। अगर कोई बेटी अपने बाप पे लगा सकती है आरोप तो वो लगा सकती है, ठीक है। अगर कोई माँ अपने बेटी को बहुत मारती है तो भी वो डीबी एक्ट में आएगा। अगर कोई भाई अपने बहन को बहुत मारता है या बहुत जलील करता है या किसी भी तरीके का वायलेंस करता है, ठीक है, तो वो महिला डीबी एक्ट में केस कर सकती है, वो किसी के ऊपर भी कर सकती है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मदर फादर जो भी है, ठीक है, अगर वो महिला है तो उनके पास अधिकार है, ठीक है। अब देखिए ये एक्ट क्यों बनाया गया था, इसीलिए मैंने शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा कहानी डाल दिया है ताकि आपको समझना है। प्रोटेक्शन ऑफ women from DVA Domestic Violence Act is one of the key acts and the laws for women in India meant for protecting women who are oppressed by domestic violence, ठीक है। The law provides for a strict legal action against husband that harass, abuse and maltreat women in their own house. The law strives to provide protection orders, residence order, as well as monetary relief, which is meant to secure their safety and general well-being. तो इसमें हस्बैंड लिखा है, इसमें कोई भी आ सकता है, यहाँ पे ये गलत लिखा है। डीवी एक्ट में आप कोई भी केस कर सकता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हस्बैंड के खिलाफ ही हो, आपके साथ कोई भी वायलेंस होता है और आप महिला हो तो आप केस कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये स्टोरी था। दूसरा है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये भी महिलाओं के लिए बनाया गया था। इस एक्ट का इंटेंशन क्या था, तो देखिए, द मेन इंटेंशन ऑफ द एक्ट वाज टू स्टॉप द मीनेंस ऑफ डाउरी इन इंडिया। कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इज द गिविंग एंड टेकिंग ऑफ द डाउरी, ठीक है। जब डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ोगे तो उसमें डाउरी लेना और देना दोनों का अपराध बताया गया है। It also aims to protect women who want to get married but are not able to because of frivolous dowry demand from the prospective groom's side, ठीक है। However, still there are a lot of cases surrounding dowry and it has been
very difficult to enforce the law because of huge population of the country and cases not being filed due to fear। सही बात है। अभी भी आप उत्तर भारत में जाइए तो डाउरी एकदम इज्जत से लिया जाता है। उनको कुछ पता ही नहीं है कि इसके लिए एक्ट बना है और ये पनिशेबल ऑफेंस है। और ये सच है। हमारे यूपी बिहार में, बिहार का यूपी का नहीं मालूम, मैं यूपी में नहीं रहा हूँ। बिहार की बात बताऊं तो हर तीसरे घर में डाउरी लिया जाता है, ठीक है, शादी में। और डाउरी जो है यूपी बिहार में एक वो इज्जत की बात होती है, ठीक है। मैं बिलोंग करता हूँ वहां से, तो मुझे पता है वहाँ लोग मतलब जैसे किसी को मतलब 1 लाख मिला ना दहेज, तो बोलेगा ये तुम्हारा औकात ही नहीं था, ज्यादा देगा, 1 लाख दिया यही बहुत है। किसी को 10 लाख मिला दहेज में तो उसका रेप्यूटेशन हाई, इतना पैसा वाला है यार, इसको 10 लाख मिला, ऐसा। तो हमारे इधर ना मतलब आपको सबको पता होगा कि जो लिटरेसी रेट है बिहार का सबसे कम है, ठीक है। तो वहां पे अभी भी लोग अवेयर नहीं है कि ऐसा कोई एक्ट है, ऐसा कोई प्रोविजन है जिसमें डाउरी के लिए केस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है, और सरकार ने होना चाहिए ना कि भाई कोई ऐसा एक्ट है तो आप पहल करो उसके लिए। ना कोई न्यूज में, ना कोई आर्टिकल, तो कैसे, मतलब ये सब थोड़ा बहुत जो है ना चेंज होने की जरूरत है। तो ओवरऑल ये है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। नेक्स्ट है आपका द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट। हाँ, सबसे पहला एसेंशियल है मुस्लिम मैरिज एक्ट में, एक सेकंड रिकॉर्ड कर लेता हूं मैं। मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए क्या क्या एसेंशियल है, तो सबसे पहले पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि कोई ऑफर देना चाहिए, ठीक है, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ना। तो कोई प्रपोजल आना चाहिए, प्रपोजल या ऑफर, ठीक है। अब इसको कोई एक्सेप्ट करना चाहिए, करेक्ट, एक्सेप्ट करेगा तभी तो वो वैलिड होगा ना आगे। तो इसको किसी ने एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, एक्सेप्ट करने के बाद उसने कंसिडरेशन देना चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन उन्होंने दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होना चाहिए, अगर विटनेस है तो ठीक है, विटनेस नहीं भी है तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अगर आप विटनेस रखते हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई भी बात नहीं। तो देखिए, किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए, पार्टी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, बराबर। प्रपोजल मतलब, अब देखिए मैं मुस्लिम मैरिज एक्ट के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। मुस्लिम मैरिज एक्ट में मैरिज को निकाह कहा गया है, ठीक है। निकाह क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, देखिए, एक पक्ष बोलता है कबूल है, तो दूसरा पक्ष बोलता है हाँ कबूल है, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कबूल है, वो बोलता है कबूल है, फिर ये बोलते हैं कबूल है, फिर वो बोलता है कबूल है। 3 बार हम ऑफर देते हैं, प्रपोजल देते हैं, और वो 3 बार हमें एक्सेप्टेंस देते हैं उसका, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाता है, इसके बाद हमें क्या देना चाहिए, कंसिडरेशन देना होता है। तो यहाँ पर जो है कंसिडरेशन पति अपने वाइफ के नाम से देता है कि मैं आपको, एक सेकंड ना, मैं आपको इस शादी के लिए, शादी करने के लिए इतना अमाउंट आपके नाम से जमा करता हूं, ठीक है। वो जो अमाउंट देता है उसको बोला जाता है मेहर। मेहर कंसिडरेशन अमाउंट है, ठीक है। तो कंसिडरेशन अमाउंट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए दिया जा रहा है, वो डाउरी जैसा नहीं है, ठीक है। डाउरी में तो डिमांड किया जाता है ना कि मुझे इतना चाहिए, ठीक है, तब शादी करेंगे, तो वो डाउरी अलग चीज है। ये जो कंसिडरेशन है इसको मेहर या इसको डावर भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो अमाउंट होता है मेहर या डावर का, वो महिला के लिए दे दिया जाता है जमा करके कि भाई अब आपको जब भी लगे ये आप पैसा ले सकती हो, क्योंकि ये आपको मैंने कंसिडरेशन के तौर पर दिया है। समझ में आया? करेक्ट करेक्ट, कंसिडरेशन। नहीं नहीं नहीं, दोनों देखो, मेहर जो है ना वो महिला के लिए आप कुछ अमाउंट फिक्स करके दे रहे हो, ठीक है, कि मैं आपसे शादी कर रहा हूं, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है तो कंसिडरेशन आपको देना चाहिए। तो आप कंसिडरेशन अमाउंट के तौर पर उनको देते हो कि आपको जब चाहिए तब आप मेरे से ये पैसा ले सकते हो, ठीक है, ऐसा। अभी हम आगे मुस्लिम मैरिज एक्ट पढ़ रहे हैं तो हम साथ ही साथ
नेक्स्ट ठीक है, अभी हमने मैरिज पढ़ा है तो अब मैं इसी के साथ मुस्लिम मैरिज एक्ट भी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये मुस्लिम मैरिज में ना मैरिज 3 टाइप का होता है, वैसे 4 टाइप का होता है। एक होता है सही मैरिज, ठीक है, सही का मतलब वैलिड, ठीक है। दूसरा होता है बातिल मैरिज, बी फॉर बातिल, ठीक है, बी फॉर बैड फॉर्म, बैड फॉर्म का मतलब क्या होगा, वॉइड हो जाएगा वो, ठीक है। तीसरा है फासिद मैरिज, फासिद मैरिज, फासिद का मतलब होता है वॉइडेबल, पहला वैलिड, दूसरा वॉइड और तीसरा वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब क्या होता है कि आप किसी कभी भी चाहो तो इसको वैलिड कर सकते हो, ठीक है। तो वॉइडेबल का यहाँ पे दूसरा मीनिंग होता है इर्रेगुलर, फासिद मैरिज जो होता है वो इर्रेगुलर मैरिज होता है, ठीक है। और चौथा है मुट्टा मैरिज, आपसे पूछा भी गया है कई बार मुट्टा मैरिज, ठीक है। तो वैलिड मैरिज का मतलब, सही मैरिज का मतलब क्या है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल को फुलफिल करके शादी किया है, तो वो कौन सा शादी होगा, वैलिड मैरिज, सही मैरिज, ठीक है। दूसरा है बातिल मैरिज, बातिल मैरिज का मतलब होता है बैड फॉर्म, आपने जो इस्लाम में लिखा हुआ है शादी करने के लिए, आपने उसको ओवर रूल करके शादी किया है, ठीक है, तो वो वॉइड मैरिज होता है। एग्जाम्पल फॉर देखिए, मोहम्मदन लॉ में ये कहा गया है कि किसी भी महिला के अगर पति जिंदा है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती, ठीक है। अगर वो दूसरी शादी करती है तो वो शादी कौन सा हो गया, वॉइड मैरिज, ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि कोई भी महिला अपने पति के लिविंग रहने पर दूसरी शादी नहीं कर सकती, अगर वो करती है तो उसका जो दूसरा शादी है वो वॉइड मैरिज हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है मुस्लिम मैरिज एक्ट में कि भाई कोई भी मर्द है, ठीक है, वो अपने माँ से, माँ के माँ से, उनके माँ से, कोई भी जो मतलब आगे बढ़ते जाओ सीधा सीधा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई भी लोग हैं तो वो मर्द उससे शादी नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो मर्द है उसकी बेटी, उसकी बेटी की बेटी, उसकी बेटी की बेटी, अब ऐसे ही आप समानांतर जाते जाओ तो वो मर्द उस श्रेणी में किसी से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर वो मर्द उस श्रेणी में किसी से शादी कर लेता है, जैसे मान के चलो बेटी के बेटी से कर लिया या बेटी के बेटी के बेटी से कर लिया, ऐसा कुछ होता है तो वो शादी वॉइड मैरिज होगा, ठीक है, बैड बैड फॉर्म ऑफ मैरिज कहा जाता है ऐसे में, ठीक है। इसी तरीके से जो होता है मुस्लिम मैरिज में बोला गया है ये मोहम्मदन लॉ में कि कोई भी महिला अगर किसी को ब्रेस्ट फीडिंग की है, अपना दूध पिलाई है, ठीक है, तो वो महिला उस बच्चे से अब माँ बेटे का रिश्ता हो गया। अब जैसे मान के चलो कोई बच्चा है, उसकी माँ मर गई बचपन में, ठीक है, तो उसकी पड़ोसी ने उसको दूध पिलाया, तो अब वो बच्चा उसके पड़ोसी के बेटे बेटी से किसी भी से भी शादी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसने सेम ब्रेस्ट फीडिंग किया है, ठीक है, उसी माँ से उसने भी पिया दूध और उसी के बच्चे ने उससे भी दूध पिया था, तो अब वो क्या हो गया, इंटरलिंक्ड हो गया। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर से शादी करते हो तो वो भी वॉइड हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बैड फॉर्म ऑफ मैरिज है। तीसरा क्या है, फासिद मैरिज, फासिद मैरिज का मतलब होता है वॉइडेबल या इरेगुलर, तो इरेगुलर मैरिज को आप रेगुलर कर सकते हो। एग्जाम्पल फॉर फासिद मैरिज में क्या होता है, आपको पता है कि कोई भी मुस्लिम मैरिज में शादी होता है तो वहां पे 2 विटनेस होना चाहिए, ठीक है, ये नियम है, ये वैलिड मैरिज का पहचान है। अगर आपके शादी के टाइम पे 2 विटनेस नहीं था तो ये माना जाएगा कि आपकी शादी जो है इरेगुलर है, ठीक है। तो आप उसको रेगुलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शादी फिर से करके 2 विटनेस को वहां पे रखना पड़ेगा, ठीक है, तो वो वैलिड हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है कि कोई भी मर्द जो है 4 शादियां कर सकता है मुस्लिम लॉ में, ठीक है, अगर उसने 5 कर ली तो अब ये शादी क्या हो गया, इरेगुलर हो गया, ठीक है। तो अब इसको रेगुलर करने के लिए उसमें से 5 वाइफ में से किसी को अगर वो डाइवोर्स दे दे तो उसकी शादी 4 से ही हो गई ना, बराबर, तो फिर वो रेगुलर हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि मुस्लिम मैरिज एक्ट में या हर किसी भी धर्म में आप जाओ तो कन्वर्जन अलाउ नहीं है, ठीक है, अगर आप किसी और धर्म में शादी करना चाहते हो तो नहीं हो सकता जब तक आप कन्वर्ट ना करें। तो अगर मान के चलो कोई मुस्लिम है जिसने हिंदू धर्म में शादी कर लिया, ठीक है, तो ये शादी कौन सा हो गया, इरेगुलर हो गया। अगर उस महिला ने उस हिंदू को भी मुस्लिम कन्वर्ट कर दिया तो फिर ये शादी क्या हो जाएगा,
रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि कोई भी महिला जब डाइवोर्स होता है किसी महिला का, तो उसके बाद एक इद्दत पीरियड होता है जिसको कूलिंग पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इद्दत पीरियड होने 3 महीने का कुछ टाइम रहता है, उसमें वो महिला खुद को अकेले रखना चाहती है, उस डाइवोर्स के परेशानी से उबरना चाहती है, कुछ ऐसा उन लोगों का मानना है। ठीक है, तो वो जो इद्दत पीरियड होता है उस पीरियड में शादी नहीं करना चाहिए। अगर उस महिला ने उस पीरियड में शादी कर लिया, इद्दत पीरियड में, तो ये शादी क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर। ठीक है, तो इर्रेगुलर हुआ तो इद्दत पीरियड खत्म होने के बाद उस महिला को वापिस से शादी करना पड़ेगा। जैसे ही वो वापिस से शादी करेगी तो वो शादी रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 टाइप का शादी, सही मैरिज, बातिल मैरिज, फासिद मैरिज। ठीक है, एक होता है मुट्टा मैरिज। मुट्टा मैरिज का मतलब होता है टेम्पररी मैरिज। इसमें क्या होता है, टेम्पररी एक पीरियड वो बनता है एग्रीमेंट, और 6 महीना साल भर के लिए। ठीक है, और उसमें दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों को साथ में रहना है। अगर 6 महीने का एग्रीमेंट है, 6 महीने के बाद अगर लगता है कि नहीं, मजा नहीं आया, फिर वहां से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके अलग हो गया। अगर लगता है कि नहीं यार अच्छा लग रहा है, तो फिर शादी को ये जो मुट्टा मैरिज था उसको क्या बोलते हैं, वैलिड मैरिज में कन्वर्ट करके लाइफ लॉन्ग रखो, जीवन भर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये होता है मुट्टा मैरिज। तो आपको साथ ही साथ मैंने मैरिज का भी बता दिया मुस्लिम लॉ में। अभी डाइवोर्स का ग्राउंड भी देख लो। ठीक है, मुस्लिम लॉ में बहुत सारे डाइवोर्स के ग्राउंड हिंदू में भी सेम है, मुस्लिम में भी सेम है। ठीक है, मोर और लेस दोनों सेम ही है। तो डाइवोर्स का ग्राउंड है सबसे पहला एडल्ट्री, दूसरा है क्रुअल्टी, तीसरा है डिजर्सन, चौथा है कन्वर्जन, पांचवा है इंसैनिटी, छठा है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, सातवां है बाइगेमी, आठवां है रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड। एडल्ट्री का मतलब है शादीशुदा हो और आपका दूसरे से अफेयर है, अडल्ट्री हो गया। क्रुअल्टी का मतलब है आप अपने वाइफ को सता रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, डाइवर्स डाउरी का डिमांड कर रहे हो, सास अलग मार रही है, बहू अलग मार रहा है। ठीक है, तो ये क्रुअल्टी है, ये भी ग्राउंड है। डिजर्सन का मतलब होता है बिना बताए आप 2 साल से अलग रह रहे हो, बिना किसी रीजन के। ठीक है, तो ये भी जो है ग्राउंड होता है। नेक्स्ट है कन्वर्जन। अगर आपने शादी की, ठीक है, और आपने धर्म बदल लिया, तो ये भी आपका जो है डाइवर्स लेने का ग्राउंड होता है। नेक्स्ट है इंसैनिटी। इंसैनिटी का मतलब है अनसाउंड माइंड। ठीक है, इसके बाद है लिप्रोसी। लिप्रोसी का मतलब होता है ऐसा कोई वेनेरियल डिजीज, ठीक है, जो जल्दी ठीक नहीं हो सकता या बहुत लंबे समय तक रहता है, ऐसा कुष्ठ रोग जैसा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। अगर 7 साल से आपके पति नहीं मिल रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आपके पति मर चुके हैं, और उसके लिए जो है आप डाइवोर्स का ग्राउंड ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बाइगमी। बाइगमी का मतलब, ये बाइगमी मुस्लिम लॉ में नहीं चलता, ये हिंदू लॉ के लिए। ठीक है, बाइगमी का मतलब है एक शादी रहते दूसरी शादी करना। मुस्लिम लॉ में तो 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, इसमें 5 भी कर सकता है, बाद में एक को डाइवोर्स दे देगा। ठीक है, तो ऐसा, तो ये हिंदू लॉ के लिए बाइगमी है। और अगला है लास्ट, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। संन्यास ले लेना, खुद को मोह माया से दूर कर देना। ठीक है, तो ये भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड होता है। उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ में आया हो। सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा, वो कौन सा केस था अपना यार, विशाखा, विशाखा का, राजस्थान वाला, बराबर। तो उसी केस के बाद ये एक्ट जो है आया था। इस एक्ट का मकसद क्या था कि भाई कोई भी महिला अगर वर्क प्लेस पे काम कर रही है तो उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का ख्याल रखा जाए। ठीक है, देखिए हर एक्ट का मैंने थोड़ा थोड़ा लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। देखिए, इट डील्स विद सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एट, it deals with sexual harassment of women at workplace. It provides a legal basis that will help curb any such harassment and protect women, hence creating a safe and fair working atmosphere free from sexual harassment of women and their abuse. The Act mandates establishing the internal committee and post policy for addressing complaint and prompt redressing of the cases. ठीक है, नेक्स्ट है आपका द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये भी एक्ट महिलाओं के लिए लाया गया था। इस एक्ट का देखिए क्या है, इन इंडिया टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज रेगुलेटेड बाय द
बाय अंडर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ठीक है, शॉर्ट में MTP एक्ट बोलते हैं। अंडर दिस एक्ट अ वुमन इज अलाउड टू एंड हर प्रेगनेंसी विद इन 20 वीक्स इफ इट्स एसेंशियल, ठीक है, for preserving her life poses a risk to her physical or mental well-being or if the pregnancy result from the rape, ठीक है। तो ये एक्ट जो है महिलाओं को 20 वीक तक का जो है प्रेगनेंसी को जो है वो करने का अधिकार देता है, ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि उससे महिला का जो है फिजिकल और मेंटल स्टेटस जो है रिस्क में है या जो बच्चा है वो रेप का है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट है द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इट इज डिफिकल्ट फॉर वर्किंग मदर्स टू वर्क ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इन द प्री चाइल्ड बर्थ स्टेज, hence the maternity benefit act 1961 was established. The act mandates for a minimum of 12 weeks of maternity leave to mother. In the 2017 amendment, this was increased to a maximum 20 weeks, ठीक है। 2017 से पहले जो था ये तो है एक्ट 1961 का, तो तब से 12 वीक ही मिलता था, लेकिन 2017 में इसमें अमेंड लग करके 26 वीक तक को जो है परमिशन दे दिया गया और महिलाओं को 26 वीक तक का जो है लीव मिलने लगा। नेक्स्ट है आपका द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 प्रोवाइड्स फॉर अ जेंडर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड इक्वालिटी बेस्ड लेजिस्लेशन that mandates that men and women both should be paid equally, ठीक है, तो उनको सैलरी के लिए है, इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। आपको पता है शुरू में चाइल्ड मैरिज एक्ट होता था, उसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया। अब कोई भी चाइल्ड मैरिज करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, ठीक है। द हिंदू सक्सेशन एक्ट। हिंदू सक्सेशन एक्ट का क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो अभी हमारा 2005 में जो अमेंडमेंट आया था उसमें हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये बताया गया कि कोई भी फैमिली है अगर वो ज्वाइंट है और अगर उसमें लड़का है और लड़की है तो लड़की का भी इक्वल राइट होगा उस प्रॉपर्टी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, ठीक है, ये बेसिकली महिलाओं के लिए है जो कपड़े नग्न अवस्था में पहनते हैं ना, छोटे छोटे कपड़े या ऐसा तो ऐसा। द एक्ट मैंडेट्स दैट देयर कैन बी नो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म, ठीक है, वेदर प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट। कोई कोई होता है ना ऐड के लिए कोई ऐसे ड्रेस पहना देते हैं और ऐड करते हैं, तो आप इस तरीके का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते किसी भी महिला का, ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है आपका द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। ये एनसीडब्ल्यू महिलाओं के उत्थान के लिए ये बनाया गया था, महिला के सेफ गार्ड के लिए, उनके साथ कोई भेदभाव न हो, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको रोके, वायलेंस हो रहा है तो उसके ऊपर काम करे, ठीक है। महिला उत्थान के लिए सरकार को अगर कोई कानून बना रहे हैं तो उसमें हेल्प करे, जेल में जाके विजिट करे कि महिलाओं का स्टेटस क्या है, उसके साथ कोई गलती तो नहीं हो रहा है, बराबर। तो ये सब काम जो है एनसीडब्ल्यू का है। तो यही एनसीडब्ल्यू जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आपने सुना होगा, ये इसी एक्ट का जो है उपज है, ठीक है। अभी ये मेन आपका राइट ऑफ वुमेन इन इंडिया, महिलाओं के क्या क्या अधिकार है इंडिया में, मेजर मेजर, ठीक है। तो सबसे पहला है राइट टू मेंटेनेंस, महिला मेंटेनेंस लेने के लिए अधिकार रखता है। दूसरा है राइट टू इक्वल पे, महिला को इक्वल पे के लेने का अधिकार है। नेक्स्ट है राइट टू डिग्निटी एंड डिसेंसी, डिग्निटी से जीने का अधिकार है। राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस न हो उसके साथ, वो फ्री होके जिए, लाइफ को एंजॉय करें, तो इसके भी अधिकार उनको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो भी राइट मैं बता रहा हूं ना, इस सब के लिए लेजिस्लेशन है हमारे पास, ठीक है। अभी मैंने बोला राइट टू मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस का बोला मैंने सीआरपीसी में भी है और हिंदू मैरिज एक्ट में भी है मेंटेनेंस के बारे में, ठीक है। राइट टू इक्वल पे मैंने अभी रेम्यूनरेशन एक्ट पढ़ा, वो उसी के लिए था, ठीक है। इसके बाद मैंने पढ़ा राइट टू डिग्निटी एंड डिसेंसी, तो ये आपका जो है उसके साथ महिला के साथ वायलेंस ना हो, पॉस एक्ट समझ लो, सेम इसी तरीके का है। नेक्स्ट है आपका राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, तो डीवी एक्ट है इसके लिए, महिला के साथ हरासमेंट ना हो, अब्यूज ना हो। राइट एट वर्क प्लेस, अभी पॉस एक्ट पढ़ा था मैंने, उसी के बारे में है कि महिला अगर वर्क प्लेस पे है तो उसको सेफ इन्वायरमेंट मिले, ठीक है, ये जो है उसका अधिकार है। राइट अगेंस्ट डाउरी, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आ जाएगा,
महिला का अधिकार है कि वो किसी को डाउरी ना दे, ठीक है। महिला को अगर कोई प्रेशर करता है डाउरी देने के लिए तो वो उसके ऊपर केस कर सकती है, ठीक है। राइट टू फ्री लीगल एड, ये तो सभी को नहीं आ रहा है कि इनको नहीं आ रहा है? हेलो, पता नहीं वो कट भी गई, ठीक है। देखिए, राइट टू फ्री लीगल एड है, ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। राइट टू सेल्फ डिफेंस, ये तो सबके लिए है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए भी है। लास्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू फीमेल, ये मैं आप लोगों का कल करा दूंगा, ठीक है। और इसके साथ ही इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है, ठीक है। और महिलाओं से, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए जो डाइवोर्स है ना, खुला मुबरत, इस सब के बारे में भी मैं आपको कल डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको नहीं 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 नहीं, आप देखिए, सवाल का है तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं यही पढ़ा के फिर आप लोगों का जो लास्ट मिनट वाला है वो कवर करा दूंगा, या अरुणा मैडम का है वो कवर करा दूंगा। वो सारे इंपॉर्टेंट ही है, सवाल उसी में से बनने हैं, ठीक है। कोई आसमान से नहीं आएगा, ठीक है। तो हाँ, तो आप लोग पढ़िए, कल भी आपका लेक्चर रहेगा, और अच्छे से पढ़िए। सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। जितना हो सके, जितना मैंने नोट्स तो सब भेज दिया, अरुणा मैडम का भेज दिया, लास्ट मिनट भेज दिया, इसके बाद इम्पोर्टेंट जो था क्वेश्चन आंसर वो भेज दिया है। पढ़ो आप लोग जितना, अभी कुछ अलग से मत पढ़ना, जो है बस वही पढ़ो, ठीक है। वही काफी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल।